we're not actually building animals, we're building ghosts. The rate at which AI is progressing, I think we might have AI that is smarter than any human by the end of this year. These like sort of ethereal spirit entities, because they're fully digital and they're kind of like mimicking humans, and it's a different kind of intelligence. And then probably by 2030 or 2031, call it 5 years from now, AI will be smarter than all of. I think we're talking about a technology here which will allow you to create new things. AI can write you excellent, imitative verse that sounds Elizabethan. It cannot write you Shakespeare. But on a practical basis, I expect on a day-to-day basis people's lives to be significantly enhanced with it across everything they touch. Now it's time for natural language processing and one of my favorite topics, and hopefully आपका भी favorite होगा because यही topic वो है जहाँ पर chat GPT से related जो basics हैं, how does AI work in today's world, what are large language models, यहीं से वो सारी चीज़ें आई हैं. So इसमें जो सब topics हैं, what is NLP and how computers try to understand human language, why is it difficult for computers to understand what humans are saying, what are the various applications of AI, कहाँ पर NLP use हो रहा है इस time पे, voice based NLP, translation होता है, sentiment detection है, and finally the techniques behind the NLP applications. What does a processing of natural language mean? कौन से process जाते हैं जैसे normalization, bag of words या फिर TF-IDF. So the first thing that must come into your mind is what is the difference between a natural language? Natural language का मतलब ये भी है एक human language, human based language जैसे English, हिंदी, फारसी, पंजाबी, पहाड़ी etc. संस्कृत, राइट. बट कंप्यूटर लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज में एक डिफरेंस ये है कि आई थिंक एक ही डिफरेंस है कि कंप्यूटर लैंग्वेज मीन्स कंप्यूटर्स ओनली टॉक इन बाइनरी. दैट मीन्स 0 और 1, ऑफ और ऑन, फॉल्स और ट्रू. सो ये एक मेजर डिफरेंस है कंप्यूटर लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज के अंदर. बट इन एडिशन टू दैट नेचुरल लैंग्वेज इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वहाँ पर फिर आप ग्रामर देखने लगते हो, वर्ड का मीनिंग देखने लगते हो. यहाँ पर ऐसी भी चीज़ें हैं कि अगर आपने रेड का यूज़ किया है तो रेड कार हो सकती है, रेड फेस हो सकता है, राइट. दोनों का डिफरेंट मीनिंग आएगा. वेराज इन कंप्यूटर लैंग्वेज एक जो चीज़ है उसका मीनिंग सिर्फ एक ही होता है, 1-to-1 मैपिंग है. देयर इज़ ओनली वन करेक्ट वे टू राइट कोड. अब डिफरेंट उसमें एल्गोरिदम्स यूज़ कर सकते हो, बट देयर इज़ ओनली ऑलवेज वन वे. And definitely natural language is hard for computers to understand, and computer language is very easy for computers to process. So this is like a basic understanding here. But what is NLP? NLP means natural language processing. जब आप human language को process करते हो in a way that computers can start to analyze the text, understand the text, and then generate some output based on that text. So in short, NLP makes computers understand human language. As simple as that. So इसमें एक ही important part है NLP में जहाँ पर आप चीज़ों को simplify करते हो, उसको numbers में convert करते हो, then एक AI model में डालते हो, generally NLP model, and then you evaluate and then you get an output. ठीक है. सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एआई? सेम थिंग एज कंप्यूटर विजन. अगर ह्यूमंस की चीज़ को देख रहे हैं तो दे कैन रीजन ऑन द इमेजेस, दे कैन मैच द इमेजेस. सिमिलरली इफ अ कंप्यूटर इज एबल टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, इट कैन डू वेरियस थिंग्स फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल फ़ोन के अंदर जो वॉइस असिस्टेंट्स हैं, आप उनको कुछ टास्क दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल सेटिंग अप द अलार्म और रिमाइंडिंग यू अबाउट समथिंग. आप लैंग्वेज ट्रांसलेट करवा सकते हो. आप यूट्यूब में आपने देखा होगा हर वीडियो के नीचे आप इंग्लिश लैंग्वेज के सबटाइटल्स डाल सकते हो, स्पेनिश के डाल सकते हो, हिंदी के डाल सकते हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सेंटिमेंट एनालिसिस एक चीज़ है जहाँ पर सेंटेंसेस का मीनिंग निकालते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि वो सेंटेंस पॉजिटिव था या नेगेटिव था. टेक्स्ट क्लासिफिकेशन या फिर टॉपिक मॉडलिंग कहा जाता है कि जो टेक्स्ट है, जो बुक है, जो आर्टिकल है, वो न्यूज़ से रिलेटेड है या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या फिर साइंस से रिलेटेड है. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि आपके पास 100 पेजेस हैं, वो सारे 100 पेजेस किस किस चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. एट द सेम टाइम आपका जो सर्च है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है बिकॉज ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. गूगल भी ये सब चीज़ें यूज़ कर रहा है.
सो देर आर 5 स्टेजेस ऑफ NLP. 5 स्टेजेस कहाँ से आए? तो सबसे पहले ह्यूमन लैंग्वेज जो है, ह्यूमंस कैसे सोचते हैं लैंग्वेज के बारे में, वो समझाया गया, वो समझा गया. सबसे पहले ह्यूमंस जो बड़े बड़े सेंटेंसेस है उसको वर्ड में ब्रेक करते हैं. देन ह्यूमंस चेक अबाउट द ग्रामर. देन ग्रामर के बाद मीनिंग फाइंड आउट करते हैं. मीनिंग के बाद ये चेक करते हैं कि दो सेंटेंसेस जो हैं आपस में उनका कुछ मतलब बन रहा है कि नहीं. एंड देन फाइनली जो भी सेंटेंसेस बोले गए हैं उनका टोटली कोई मीनिंग बन रहा है कि नहीं. तो ये सारे जो 5 स्टेजेस हैं हम लोग देखते हैं. फर्स्ट इज़ द लेक्सिकल एनालिसिस, जहाँ पर आप सारे बड़े बड़े सेंटेंसेस को छोटे छोटे वर्ड्स में कन्वर्ट करते हो. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज टोकनाइजेशन. तो NLP वाली जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने सारे प्रोसेसेस को बहुत अच्छे से कवर किया है. वहाँ पर आप वो वीडियो एक बार देख सकते हो. आफ्टर लेक्सिकल एनालिसिस, आफ्टर यू चेक कि जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं वो मीनिंग बना रहे हैं कि नहीं, देन यू डू सिंटैक्टिक एनालिसिस. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप ग्रामर के जो रूल्स हैं वो चेक करते हो कि आपका ग्रामर सही है कि नहीं, आपका जो सिंटैक्स है, आपका जो फॉर्मूला है इंग्लिश लैंग्वेज का प्रॉबेबली वो सही है कि नहीं. हिंदी का फॉर्मूला अलग होता है, हिंदी में सिंटैक्स अलग होता है, आप पूर्ण विराम यूज़ करते हैं उसमें, तो वो सब चीज़ें सही हैं कि नहीं, वो सिंटैक्टिक एनालिसिस में यूज़ होता है. Then after that, you go into the meanings of the word, you go into the meanings of the text, you go into the meanings of the sentences. So एक होता है semantic analysis. Semantic analysis का मतलब है आप meaning ढूंढ रहे हो word के अंदर कि actually कुछ meaning बन रहा है या नहीं. For example, hot ice cream. इसका कुछ मीनिंग नहीं बन रहा है, इवन दो इसका जो ग्रामर है, सिंटैक्स है वो करेक्ट आ रहा है, बट इसका कुछ मीनिंग नहीं बन रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी है ये. तो सेमांटिक एनालिसिस में हम ये चेक करते हैं कि वर्ड, इंडिविजुअल वर्ड्स का जो मीनिंग है वो बन रहा है या नहीं. फिर देन यू गो इनटू डिस्कोर्स इंटीग्रेशन. डिस्कोर्स मतलब कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कैसे किया जा रहा है वो चेक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द फॉक्स जम्प्ड. अब नेक्स्ट सेंटेंस में आपको ये नहीं लिखना है देन द फॉक्स रैन, यू कैन रिप्लेस द फॉक्स विद इट. तो यहाँ पर कैसे दो सेंटेंस लिंक हो रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, वो चेक किया जाता है. इंग्लिश लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा. देन यू डू अ प्रैग्मेटिक एनालिसिस. प्रैग्मेटिक एनालिसिस में आप ये चेक करते हो कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. इट अंडरस्टैंड्स द रियल इंटेंट. फॉर एग्जाम्पल, पुलिंग योर लेग. तो अगर आप इसका रियल मीनिंग लोगे तो समवन इज लाइक पुलिंग योर लेग, आपकी कोई लात खींच के लेके जा रहा है, बट दैट्स नॉट द रियल मीनिंग. रियल मीनिंग क्या है इसका? जोकिंग. एक इडियम है ये. इट इज़ नॉट लिटरली पुलिंग अ लेग. सो ये जो 5 स्टेजेस हैं, दिस ट्राइज टू ब्रेक डाउन लैंग्वेज इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट सो दैट द कंप्यूटर स्टार्ट्स टू नो कि ओके इस स्टेप में मुझे ये चीज़ चेक करनी है, नेक्स्ट स्टेप में मुझे मीनिंग चेक करना है, फिर मुझे डिस्कोर्स चेक करना है, देन प्रैग्मेटिक एनालिसिस चेक करना है. तो ऑल दिस वाज डन प्री 2010s. 2000 से पहले ये सब चीज़ें चेक होती थी, बट 2010s के बाद जब ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स आ गए, थोड़े एडवांस फॉर्म ऑफ मॉडल्स आ गए, तो ये सब चीज़ें उनके अंदर खुद से आने लगी. नेक्स्ट टॉपिक फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज चैटबॉट्स. चैटबॉट्स का सिंपल मतलब ये है कि एक बॉट है. बॉट इज अ मशीन विच कैन इंटरैक्ट विद यू आइदर वाया वॉइस और टेक्स्ट और मे बी इमेजेस. ओके, सो 2 टाइप के बॉट हो सकते हैं, एक स्क्रिप्ट बॉट और एक होता है स्मार्ट बॉट. स्क्रिप्ट बॉट का मतलब है कुछ रूल्स फॉलो हो रहे हैं, रूल 1, रूल 2, रूल 3. फॉर एग्जांपल, आपने स्विगी से ऑर्डर प्लेस किया है एंड आपने बोला कि आई वांट टू नो द लोकेशन ऑफ माय ऑर्डर. तो एक रूल फॉलो होगा, सडनली आपका ऑर्डर नंबर पूछा जाएगा एंड देन उसकी लोकेशन बताई जाएगी. बट अ स्मार्ट बॉट डज समथिंग डिफरेंट. इट कैन स्टार्ट टू अंडरस्टैंड योर इंटेंट. यू आर सेइंग दैट माई ऑर्डर इज गेटिंग लेट, वेयर इज द डिलीवरी पार्टनर, कैन आई कॉल हिम. सो वो सब चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेगा स्मार्ट बॉट एंड देन इट विल रिप्लाई टू यू. सो एसेंशली स्क्रिप्ट बॉट आर वेरी ईजी टू मेक, क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ रूल्स क्रिएट करने हैं. वेयर एज for the same thing, smart bot becomes very powerful, but at the same time it needs a lot of data to train. What is the main principle behind smart bot? It is AI. Whereas script bot is rule based AI. उसको generally AI नहीं consider करते हैं, but it is still rule based AI. And this is learning based AI. जहाँ पर AI model learn कर रहा है data के through, यहाँ पर AI model reply कर रहा है based on some rules. इट डेफिनेटली रिक्वायर्स कोडिंग. स्क्रिप्ट बॉट में भी कोडिंग यूज़ होती है, बट आजकल उसका उतना ज़रूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, FAQ बॉट्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस.
सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर किसी भी यूज़र ने एक क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन 1, उसको आंसर 1 मिलेगा, चाहे वो 10 बार पूछे 1000 बार पूछे. Whereas a smart bot can have wide functionality. There is no limit on the amount of questions or the type of questions you can ask. The bot will reply. For example, ChatGPT. So let's get into the steps of how natural language processing works. हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि कंप्यूटर को कैसे अंडरस्टैंड करवाते हैं. सबसे पहले आता है आपका लेक्सिकल एनालिसिस आता है, फिर सेमांटिक एनालिसिस आता है, डिस्कोर्स इंटीग्रेशन आता है, प्रैग्मेटिक एनालिसिस आता है, राइट? तो उन सब चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले अपने टेक्स्ट को इस फॉर्म में क्रिएट करना पड़ेगा कि जो कंप्यूटर है दैट स्टार्ट्स टू अंडरस्टैंड थिंग्स. हाउ डज अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड? द बेस्ट वे टू डू दैट इज कन्वर्ट इनटू बाइनरी लैंग्वेज. बाइनरी मतलब वंस एंड जीरोज, और वंस एंड जीरोज में अगर आपको पहुंचना है तो एटलीस्ट एक नंबर फॉर्म में तो पहुंचना ही पड़ेगा. तो उस नंबर फॉर्म में लेके जाने के लिए सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट को जो है सिंप्लीफाई करते हैं. तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग सेंटेंसेस को सेगमेंट करते हैं, सबसे छोटे छोटे फॉर्म में डिवाइड करते हैं. सबसे छोटा फॉर्म होता है वर्ड्स, और यू कैन ऑल्सो से दैट दे आर टोकन्स, राइट? टोकनाइजेशन कहा जाता है उसको. वंस यू कन्वर्ट द एंटायर कॉर्पस और द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेज एंड डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स into the smallest form, then you try to remove the stop words. Stop words are the ones which occur very frequently but they don't add any meaning. So अगर कंप्यूटर को आप ये सारे वर्ड्स दोगे, it won't understand कि what these words mean because literally उनका कुछ मीनिंग नहीं है. वो सिर्फ इसलिए है ताकि ग्रामर के रूल्स फॉलो हो. Then you also convert into common case because computers cannot differentiate between computers do differentiate between capital letters and small case letters. So computer would say that hello in capitals is different than small case hello. तो हम लोग सारे टेक्स्ट को सेम फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, either capitals और small. जनरली स्मॉल में कन्वर्ट किया जाता है. एंड देन यू ट्राई टू सिंप्लीफाई इट फर्दर बाय यूजिंग स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन. इसका एक मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल स्टडिंग इज अ वर्ड, बट इसका जो बेस वर्ड है, बेस वर्ड क्या है? स्टडी, राइट? आईएनजी तो सिर्फ ये बता रहा है फॉर्म क्या है उसका, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. तो बट इसका जो बेस वर्ड है सिर्फ वही आपको कंप्यूटर को पास ऑन करना है. लेटर ऑन इट कैन मेक सेंस, क्योंकि आप इतने सारे वर्ड्स दोगे, 1 मिलियन वर्ड्स अगर दे रहे हो तो धीरे धीरे उसको समझ में आने लगेगा कि स्टडिंग में प्रेजेंट टेंस कहाँ आ रहा है, पास्ट टेंस कहाँ आ रहा है, एंड सो ऑल दैट. सो मेन aim of text normalization is to simplify the words so that you can later on convert it into a number. So आपके एग्जामिनेशन में स्टेमिंग वर्सेस लेमेटाइजेशन का काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है. स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन में सिर्फ एक मेजर डिफरेंस है कि स्टेमिंग में फाइनल वर्ड मे नॉट गिव अ रियल वर्ड. लाइक केयरिंग में से अगर आप आईएनजी हटा दो तो कार बन जाएगा, बट इसका रूट वर्ड क्या था? केयर. केयर एंड कार आर टू डिफरेंट थिंग्स. वेराज लेमेटाइजेशन में सेम चीज़ होगी बट एक मीनिंगफुल वर्ड निकलेगा. केयरिंग बन जाएगा केयर, एंड दिस इज स्लोअर बट इट इज़ मोर एक्यूरेट. सो इट डिपेंड्स कि आपको बहुत फास्ट प्रोसेसिंग करनी है तो आप स्टेमिंग कर सकते हो, इसमें एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाएगी. बट अगर आप लेमेटाइजेशन यूज़ करोगे इट विल स्टिल गिव यू मच मोर एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज एट द कॉस्ट ऑफ स्पीड. Then you have bag of words model. Once you have normalized the text data, आपके पास सबसे छोटे छोटे words आ गए हैं. For example, आकाश is one of the words. Is a boy, ठीक है, 2 words बन गए. Then आकाश plays. Then football can one of the words. So computer can start to make sense of this. क्योंकि अगर original आप text देखोगे, it can be आकाश is a boy and Akash plays football. I'm keeping the examples very simple so that you understand what is going on behind the scenes. So यहाँ पर text normalization में आप stop words निकाल दोगे, case छोटा कर दोगे सबका, and उसको सबसे छोटे units which is tokens में convert कर दोगे. Then you start to create a dictionary. Dictionary में मतलब आप words लोगे सारे common case कौन से? आकाश 2 बार आ रहा है, बॉय आ रहा है 1 बार, प्ले आ रहा है 1 बार, फुटबॉल आ रहा है 1 बार. सो विद दिस यू हैव क्रिएटेड अ डिक्शनरी एंड देन यू स्टार्ट टू क्रिएट डॉक्यूमेंट वेक्टर्स. सो इफ आई से दैट देयर आर 2 documents, document 1 and document 2. So let's name आकाश, बॉय, प्ले एंड फुटबॉल यहाँ लिख देते हैं, ठीक है.
डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल का मतलब है कि हर एक वर्ड एक डॉक्यूमेंट में कितनी बार आ रहा है. सो फुटबॉल फर्स्ट डॉक्यूमेंट पे तो नहीं आया, तो 0 बार. आकाश एक बार आ रहा है, बॉय एक बार आ रहा है, प्ले 0 बार आ रहा है. सेकेंड डॉक्यूमेंट में फुटबॉल एक बार आ रहा है, आकाश एक बार आ रहा है, बॉय 0 टाइम्स आ रहा है, प्ले एक बार आ रहा है. राइट. सो ये आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट वेक्टर्स. इसका इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मैंने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वाली वीडियो में दिया है. इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, यू कैन गो देयर एंड जस्ट practice everything again. Because of document vector table, you can calculate something TF-IDF. Once you have document vectors, for example, पिछले स्लाइड में क्या था, डॉक्यूमेंट वेक्टर हमें मिल गया 0 1 1 0 एंड डॉक्यूमेंट 2 का वेक्टर हमें मिल गया 1 1 0 1. बेस्ड ऑन दिस आप कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हो TF-IDF में. ये आपके सिलेबस में नहीं है इस बार, बट यहाँ से आप टर्म की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो. हाउ ऑफन अ वर्ड अपीयर्स इन वन डॉक्यूमेंट. देन आप इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो कि जितने टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें वो वर्ड कितनी बार आ रहा है. सो दिस इज द फॉर्मूला. प्लीज़ लुक इनटू द NLP वीडियो फॉर दिस. ये आपके सिलेबस में नहीं है फॉर द थियोरेटिकल पार्ट, बट इफ़ यू वांट टू कवर इट यू कैन लुक इनटू दैट वीडियो. सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ TF-IDF. सो TF-IDF से एक चीज़ क्या हुई, हर एक वर्ड जो है, जैसे आकाश था, बॉय था, फुटबॉल था, प्ले था, हर एक वर्ड को एक ना एक नंबर मिल जाएगा. जैसे 0.01, क्योंकि आकाश 2 बार था तो उसका जो इम्पोर्टेंस है वो कम रहेगा, तो 0.01 हो गया. बॉय एक ही बार आया था तो 0.5 कर सकते हैं, फुटबॉल एक बार आया था तो 0.6 कर सकते हैं, प्ले एक बार आया था 0.7. बिकॉज हमने सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट्स लिए थे, इसलिए यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं थोड़े सिमिलर दिखेंगे. बट जब डॉक्यूमेंट्स आप इंक्रीज़ करते रहोगे धीरे धीरे, तो ये जो प्रेसिजन है 0.791 हो सकता है, यहाँ पर 0.5982 हो सकता है. तो आपके पास थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स होंगे, हर एक वर्ड के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक नंबर होगा. एंड इन नंबर्स का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा बार कोई वर्ड रिपीट होता है उसकी जो वैल्यू है वो इतनी ही कम होती है. तो यहाँ पर एक चीज़ आती है, स्टॉप वर्ड्स की वैल्यू जो है वो कम है. दिस इज़ द वैल्यू एंड दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी. तो किसी भी वर्ड की अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, उसका नंबर जो है बहुत कम होगा. वेराज जितने रेयर वर्ड्स होंगे, जितना इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, वो लेस फ्रीक्वेंट होंगे और उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी. सो कहाँ पर एप्लीकेशंस है TF-IDF का, आप डॉक्यूमेंट्स को क्लासीफाई कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्यूमेंट में अगर स्पेस बार बार आ रहा है, सन बार बार आ रहा है, मून बार बार आ रहा है, एंड इनका जो वैल्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल 0.9, 0.8, 0.7. तो आप ये बता सकते हो कि दिस इज़ एन आर्टिकल और अ डॉक्यूमेंट विच इज़ रिलेटेड टू स्पेस और द यूनिवर्स. तो उसमें से आप डॉक्यूमेंट्स को क्लासीफाई कर सकते हो. सिमिलरली स्पोर्ट्स का होगा तो उसमें क्रिकेट, फुटबॉल या फिर हैंडबॉल का जिक्र ज़्यादा होगा. टॉपिक मॉडलिंग भी सेम चीज़ पे काम करता है. आप इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. आप यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एंड उससे रिलेटेड सेंटेंसेज आपको मिल जाएंगे. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स इज़ कि आप स्टॉप वर्ड को फिल्टर कर सकते हो. जिस वर्ड की वैल्यू बहुत कम है तो आप वो वर्ड को निकाल सकते हो. एंड दिस रिमूव्स द अननेसेसरी वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट. एंड दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ TF-IDF. सो विद दिस वी हैव क्विकली कवर्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. तो हम लोग 12 क्वेश्चन नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा. सो व्हाट डज NLP स्टैंड फॉर? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. आई डोंट इवन हैव टू एक्सप्लेन व्हाई. Which NLP application detects whether a review is positive, negative or neutral? तो यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं हम लोग इमोशन चेक कर रहे हैं, हम लोग सेंटीमेंट चेक कर रहे हैं कि what is the sentiment of a particular comment on YouTube, what is the sentiment of a particular news, is it positive, is it negative or is it neutral? So C option, sentiment analysis, is right. What is the first stage of natural language processing? So the first stage is I think syntactic analysis होता है, जहाँ पर आप सबसे पहले वर्ड्स को सबसे छोटा सेंटेंसेस को छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करते हो. प्लीज़ वेरीफाई. फॉर मी आई थिंक इट्स D, syntactic analysis. फिर आता है आपका लेक्सिकल एनालिसिस, जहाँ पर आप ग्रामर चेक करते हो, फिर मीनिंग चेक करते हो, एंड फिर आप उसका प्रैक्टिकलिटी चेक करते हो. बट प्लीज़ वेरीफाई वंस. Words that are filtered out before text analysis because they add no value are called stop words. Again, this is the graph which is generally asked. So this is the value of the word and this is the frequency of the word.
सो फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, जैसे ए एंड द, इन वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। जनरली 80% जो वर्ड्स हैं टोटल किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी बुक में, 80% वर्ड्स वेरी फ्रीक्वेंट होते हैं, तो इनकी जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है। वेराज जो वर्ड्स बहुत रेयर हैं, फॉर एग्जांपल सुपरनोवा और फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप, सो ये वर्ड्स ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, दैट इज़ वाई देयर वैल्यू इज़ हाई। सो स्टॉप वर्ड्स एड नो वैल्यू एंड दैट इज़ वाई दे आर फिल्टर्ड आउट। What distinguishes lemmatization from stemming? Stemming को आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो, लेट्स से यू हैव अ प्लांट, प्लांट में आपके कुछ लीव्स हैं, सॉरी फॉर द ड्राइंग बट लेट मी एक्सप्लेन टू यू। स्टेमिंग में क्या होता है, आप स्टेम्स कट कर रहे हो सो दैट आपको एक रूट मिल रहा है, बट यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको मीनिंगफुल वर्ड मिले। सो लेमेटाइजेशन में आपको हमेशा मीनिंगफुल वर्ड मिलता है, सो ए ऑप्शन इज़ राइट। What is the primary purpose of bag of words model in NLP? So bag of words model में क्या होता है, आपको frequency मिल जाती है वर्ड्स की, जो भी मेन वोकेबलरी है, फॉर एग्जाम्पल वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3, आप उसको सॉर्ट आउट कर देते हो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जाम्पल वर्ड 1 आया 101 टाइम्स, वर्ड 2 आया 70 टाइम्स, वर्ड 3 आया 54 टाइम्स। तो क्यों यूज़ होता है बैग ऑफ वर्ड्स? ट्रांसलेट टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लैंग्वेजेस टू एक्सट्रैक्ट फीचर्स फ्रॉम टेक्स्ट फॉर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। यस, सो बेसिकली दीज आर द फीचर्स विच आर देन फेड इनटू एन ML मॉडल। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7, व्हाट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्स्ट प्रोसेसिंग व्हाट आर स्टॉप वर्ड्स? हम लोगों ने देखा था हाईएस्ट अकरिंग वर्ड्स इन द कॉर्पस। कॉर्पस का डेफिनेशन काफ़ी बार पूछा गया है। कॉर्पस मतलब कलेक्शन ऑफ all documents which are required for NLP. What does discourse integration involve with NLP? हम लोगों ने देखा था कि coherent story, अच्छा coherent story तो हम लोग आते देखते हैं शायद pragmatic में, practical analysis होता है। discourse integration में हम लोग चेक करते हैं fox jumped then it ran। तो यहाँ पर हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि फर्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस से लिंक कैसे हो रहा है। फॉक्स जम्प्ड देन इट रैन, तो यहाँ पर इट का मीनिंग है फॉक्स। सो एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग सेंटेंसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन? टोकनाइजेशन होता है, लेमेटाइजेशन होता है, पंक्चुएशन रिमूवल भी आप कर सकते हो, जहाँ पर आप फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, ये सब चीज़ों को रिमूव करते हो बिकॉज दे डोंट ऐड एनी वैल्यू, दे डोंट ऐड वैल्यू, सो दे आर रिमूव्ड। सो डी ऑप्शन विच इज़ डॉक्यूमेंट समराइजेशन नहीं होता। एंड फाइनल क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ TF-IDF? टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी इन टेक्स्ट प्रोसेसिंग to identify the value or importance of each word in a document. So this is the importance. So with this, we have finished the entire important topics for class 10th 2026 board exams. So I hope आपने अच्छे से पढ़ाई की है. Maybe go to the channel and try out different videos and let me know in the comments if you have any doubts. I will share a document जहाँ पर आपको सारे important questions share किए जाएंगे. All the best for your examinations. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye-bye.